Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with lecture number 3 on the complete coverage of current affairs series, in which we are going to cover past 1 year current affairs. हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है. सो फार वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स. 2 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड द पीडीएफ ऑफ बोथ द लेक्चर्स हैव बीन uploaded on our telegram channel. Okay, so you can directly download the class pdf from there. हमारे टेलीग्राम चैनल से सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम वेयर यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द क्लास पीडीएफ्स. ओके, so in lecture number 3 we are going to cover 3-4 most important current affairs in the last 1 year which are relevant for your upcoming preliminary examination. Okay, तो पिछले एक साल में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनको हम कवर करेंगे इस क्लास में और धीरे धीरे इन लेक्चर्स के थ्रू हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे आपके प्रीलिम से पहले. सो मेक श्योर दैट यू हैव योर नोट्स रजिस्टर्ड. इफ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ दीज करंट अफेयर्स यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट एंड रिवाइज साइमल्टेनियसली विद मी इन द क्लास. Let's begin. Now, before we start this session, I have a little update for all of you. As you all are aware of the situation that is going on in our country right now, it's very unsafe to step out outside your house, right, for anything except for essential items. That is why it's very important for you all to know that now you have to start putting up more hard work and efforts in order to complete your preparation. And Unacademy is here to help you in that. Unacademy has launched UPSC CSE 4-in-1 offer, wherein you are not just going to get video lectures on Unacademy but also the printed notes worth rupees 10,000 free of cost if you take your Unacademy Plus subscription of 1 year or more. अगर आप Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या उससे ज्यादा का, यानी कि 2 साल का या 3 साल का, जैसे भी आपका एग्जाम आ रहा है उस हिसाब से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे. और अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट के कारण आप अपनी तैयारी Unacademy के साथ नहीं कर पा रहे हो तो Unacademy ने लॉन्च किया है लोन ऑफर, जहां पर 0% इंटरेस्ट रेट पर 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लोन मिलेगा. 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा, हिडन चार्जेस नहीं है, पेपर वर्क बहुत कम है और लोन रीपे ऑफ करने का जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो भी फ्लेक्सिबल है. आई हैव गिवन यू द लिंक ऑफ द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हाउ टू अप्लाई टू द लोन. वंस यू अप्लाई यू विल बी गेटिंग अ कॉल फ्रॉम आवर टीम एंड ऑल्सो इफ दे आस्क यू फॉर कोड तो आप अर्पिता 10 कोड यूज कर सकते हो लोन की एप्लीकेशन के दौरान. ऑल्सो Unacademy is giving one subscription to crack it all. 35% का discount Unacademy Plus is providing, right? If you take GS Plus optional or iconic GS Plus optional combo pack, so you will be getting 35% discount. 10% तो मिलेगा कोड यूज करके, 10% you will get by using this referral code Arpita10. 25% with optional is Unacademy is providing this discount directly. Okay, so enroll in these courses and also from today new batches are also starting. आज से 1 year का 2 year का NCERT batches start हो रहे हैं. So make sure that you take your subscription today. आज के आज अपना subscription ले लीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए. Okay, चलो, so let's start with the class. Now first topic that we are going to discuss is the Raisina Dialogue 2020. अभी हाल फिलहाल में ना पिछले साल आई गेस 5th edition Raisina Dialogue का हुआ था न्यू दिल्ली में. Now here what you have to remember, first thing you have to remember is which edition was conducted. It was the 5th edition. Secondly, where was it conducted? It was conducted in New Delhi. 5th edition हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ है. Now because it's a 5th edition you have to remember when was the first edition conducted. First edition of this meeting was conducted in 2016. 2020 में जो मीटिंग हुई है उसका थीम क्या है? देखो, आपको टाइटल or the meetings which are conducted, international meetings, you have to remember the title or the theme and the place where the meeting was conducted and also the objectives of this particular dialogue or any meeting that you are studying. Okay, तो हमें पता चल गया पहले 2016 में हुआ था, 5th न्यू दिल्ली में हुआ है 2020 में. टाइटल इज नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी. ओके, So what is Raisina Dialogue? It's a multilateral conference. एक ये multilateral conference है committed to address the most challenging issues facing the global community. The global community, internationally the countries, the challenges that they are facing. These meetings or dialogues
discuss those challenges and how to solve those challenges. तो हर साल जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिसी में हो, बिजनेस में हो, मीडिया में हो, सिविल सोसाइटी के लीडर्स हो, वो इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिसी में किस तरीके के फेरबदल किए जा सकते हैं चैलेंजेस को मीट करने के लिए या चैलेंजेस का सोल्यूशन लाने के लिए. Dialogue is structured as a multi-stakeholder cross-sectoral discussion involving heads of states, cabinet ministers, local government officials, and as well as major private sector executives, members of media and academics. So here, not just the leaders of the countries are participating, but the leaders from different aspects in a country, from different phases in a country, for example, business, media, etc., they also participate. This conference is hosted by Observer Research Foundation, ORF. Please remember this, in collaboration with Ministry of External Affairs, Government of India. Now here they can also ask you another question. एक और question यहाँ पर आपके लिए easily बन सकता है, that what is this Observer Research Foundation? ठीक है, अब ये question आपका easily तैयार होकर आ सकता है. So ORF, what is it? पहली बात तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वाज सेट अप इन 1990. प्लीज राइट इट डाउन. 1990 में इसको सेटअप किया गया था एंड इट सीक्स टू लीड एंड help policy thinking towards building a strong and prosperous India. Its headquarter is in New Delhi only. हेडक्वार्टर भी ना इसका न्यू दिल्ली में ही है, ये भी आपको याद करना है. एक तरीके से ना ये आप बोल सकते हो कि एक तरीके का ये थिंक टैंक है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? दैट इज ORF. And another important point is, एक और important point है कि when was it founded? It was founded on 5th September 1990. Okay? चलो. And the current chairman of ORF is Sunjoy Joshi. Write it down. इसको भी लिख लीजिए. Current chairman जो है इसके वो है Sunjoy Joshi. Okay? He is the current chairman. Now another important point यहाँ पर आपको याद रखना है कि ORF फिफ्थ एडिशन जो रायसीना डायलॉग का हुआ है उसको ORF ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर होस्ट किया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लिबिया समिट. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. प्रेसिडेंट्स ऑफ रशिया, टर्की एंड फ्रांस, RTF, they joined other global chiefs and heads at the talks hosted by Chancellor Angela Merkel and held under the auspices of United Nations. United Nations के अंडर एंजेला मर्केल ने जो एक मीटिंग, एक समिट कंडक्ट किया था जिसमें रशिया, टर्की, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया. Summit's main goal is to get foreign powers wielding influence in the region to stop interfering in the war. लिबिया में जिस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, राइट, लिबिया में जिस तरीके के वॉर चल रहे हैं उसको रोकने के लिए ये समिट को कंडक्ट कराया गया था कि एक सबसे पहली बात तो उस वॉर में हमें इंटरफेयर नहीं करना. ठीक है, चाहे वो वेपन्स के थ्रू हो, ट्रूप्स के थ्रू हो, फाइनेंस के थ्रू हो, फॉरेन पावर्स को यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली यूज नहीं करना वॉर में इंटरफेयर करने के लिए. So here, heads of states and lawmakers from Russia, Algeria, Turkey, Egypt, UAE, France, Italy, Britain, China, and US, they came together to discuss the future of Libya. Main, goal was to stop the foreign powers to influence negatively in this war. Key agreement of this summit was that participants committed to refraining, that is stopping themselves from interference in the armed conflict or in the internal affairs of Libya. लिबिया का जो आंतरिक मामला है, जो इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं, उसमें और किसी कंट्री को गलत तरीके से इनडायरेक्टली, चाहे वो वेपन्स के थ्रू हो, पावर के थ्रू हो, पैसे के थ्रू हो, आर्मी के थ्रू हो, इंटरफेयर नहीं करना, उनको खुद सुलझाने देना है अपना मैटर. It also, the participant calls on all parties concerned for a sustained suspension of hostilities. आसपास के कंट्रीज को किसी तरीके की हॉस्टिलिटी नहीं रखनी है लिबिया की तरफ, राइट. अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप किसी तरीके की हॉस्टिलिटी भी ना रखें. ठीक है, दैट वाज द समिट, दैट वाज द गोल ऑफ दिस समिट. All right, so I hope you understood the Libya summit. Now another important topic is global talent competitiveness index. Now here, India has moved up 8 places to the 72nd position in the Global Talent Competitiveness Index of 2020, GTCI. अब ये GTCI क्या होता है? ये जो GTCI है इसने एक अपनी रिपोर्ट लॉन्च करी है. थीम था इस 2020 के रिपोर्ट का ग्लोबल टैलेंट इन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में ग्लोबल टैलेंट, ये था इसका थीम. ठीक है, कि ग्लोबली नेशंस कैसे AI को यूज कर रहे हैं.
स्विट्जरलैंड ने इस लिस्ट में टॉप किया है। 132 नेशंस की ये लिस्ट बनी थी, उसके बाद यूएस और सिंगापुर आते हैं। तो टॉप 3 आप याद रखना और इंडिया का पोजीशन याद रखना। यू हैव टू रिमेंबर टॉप 3 एंड यू हैव टू रिमेंबर इंडियाज पोजीशन। इट वाज स्टार्टेड इन 2013, एक एनुअल बेंचमार्किंग रिपोर्ट के तौर पर ये बनना शुरू हुआ था GTCI। धीरे धीरे इसमें कंट्रीज एड अप होते गए, ठीक है। नाउ इसको लॉन्च किसने किया है? इनसीड ने लॉन्च किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पार्टनर्स हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इनसीड क्या है? इनसीड वर्ल्ड की लीडिंग लार्जेस्ट ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल्स हैं, जिसके इंस्टीट्यूशंस काफी कंट्री में और वर्ल्ड में काफी स्प्रेड है। 6 मेट्रिक्स यूज टू डिसाइड अ कंट्रीज रैंक, यानी कि कंट्री की जो रैंकिंग डिसाइड होती है ना, 6 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे डिसाइड होती है। इनेबल, यानी कि वो कैसे इनेबल करते हैं लोगों अपने कंट्री में लोगों को टू अडेप्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू ग्रो। अट्रैक्ट, ग्रो, retain, vocational skills and global knowledge skills. These are the 6 parameters. You have to remember these 6 parameters for your preliminary examination. Okay, point clear हो गया? Now another important topic. Recently, central government has notified the structure of the National Startup Advisory Council. What is this National Startup Advisory Council? You have to remember first the composition. इसका composition पहले तो आपको याद रखना है। इसमें chairperson है Ministry for Commerce and Industry. Ex officio members are nominated by concerned ministries and departments, जो कि joint secretary के rank के नीचे नहीं होने चाहिए। Non-official members, they are nominated by central government for 2 years. Co-winner of the council, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. This is the composition. Now let us understand what is the aim of this National Startup Advisory Council. The aim is to advise government to build a strong ecosystem for nurturing startups in the country. हमारी कंट्री में जो स्टार्टअप्स है, नए नए बिजनेस है, उनको नर्चर करने के लिए, उनको ग्रोथ देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना। टू ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। देखो स्टार्टअप्स की बात आ गई तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कैसे की जाए, गवर्नमेंट को इसकी सलाह देना, ये इनका काम होगा। टू प्रमोट ईज ऑफ एक्सेस टू कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स, इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्टार्टअप्स। कैसे आप स्टार्टअप्स को डोमेस्टिक कैपिटल कंट्री के अंदर से कैपिटल लाकर दे सकते हो, ठीक है। कैसे उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हो ताकि वो और अपनी प्रोडक्शन और अपना काम बढ़ाएं। टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, ताकि सिटीजन्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक इनोवेशन का कल्चर फोस्टर करना, ताकि वो इनोवेट कर सके टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज एटसेट्रा। तो ये सारे काम होंगे NSAC के, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये थी आपकी आज की थर्ड लेक्चर। आई होप आपको थर्ड लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब ना हमको और मोटिवेट करता है कि हम नए लेक्चर्स आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।